Hello, my dear friends and viewers. Today we are going to discuss limit in which concept is indeterminate form. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लिमिट की डिफिनीसन और लिमिट मीनिंग क्या होती है, एंड लास्ट वन वाज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. और पिछली वीडियो में हमने ग्राफ से भी देखा था जिससे कि लिमिट कैसे वेरी करती है, राइट. अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? दीज आर 7 टाइप्स ऑफ indeterminate form, right, which means if after applying limit x tend to a, whenever x going towards a, which means sometimes if we substitute x equal to a for approximate value, if fx upon gx are any function of the form 0 by 0 or infinity upon infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 1 power infinity, 0 power 0, infinity power 0, then we need any other method, other concept to find the limit of that function, which means in basic classes we can think 0.0 is 1, but incorrect here, right? We can't do like this. So 0.0 is not 1, infinity upon infinity is not 1, 1 power infinity, in basic classes we can think 1 power infinity is 1, 1 power anything is 1, but no, 1 power infinity is not equal to 1. This one is indeterminate form. So ये सारे 7 indeterminate form है. कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में आता है एक्स टेंड टू ए जाने पे तो उसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, और दूसरा मेथड कोई अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये आंसर नहीं होगा. व्हाट इट, आइए देखते हैं. मेथड टू बी यूज टू इवेलुएट द लिमिट. दीज आर व्हाट आर द मेथड टू फाइंड द लिमिट्स. ओके, फर्स्ट मेथड इज वेरी बेसिक मेथड विच इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड. Factorization method is what? Simply in earlier classes in class 9 10th you know how to factor the polynomial, how to factor, which means suppose x square plus 2x plus 3, then quadratic equation we can factorize, right. So simply हम इसमें करते क्या है कि fx सपोज fx किया गिवन है सपोज gx अपॉन hx और लिमिट अप्लाई करें x टेंड टू a. So whenever limit x tend to a, gx upon hx going 0 by 0 form or infinity, whatever these given forms, right, 0 upon 0 or infinity upon infinity, especially 0 upon 0 and infinity upon infinity, then what we will do, we can't, this one is not answer. So हम अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड मीन जस्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फैक्टराइज एंड समथिंग कैंसिल आउट. ओके, रिमेनिंग भी आप अप्लाई लिमिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ओके, एग्जांपल के लिए हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एग्जांपल्स देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हम अर्लियर क्लासेस या बेसिक क्लासेस में नहीं जानते अप टू क्लास 10th. एक्स एन माइनस ए एन, वेयर ए इज एनी नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच मीन 1 2 3, एन की वैल्यू एच होगी और ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई रियल नंबर. एक्स एन माइनस ए एन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. फॉर एग्जाम्पल हम एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब जानते हैं. एक्स, ये बेसिक फॉर्मूला हमको पता है कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये जानते हैं हम. सो एक्स एन माइनस ए एन इज वाट? एक्स माइनस ए एक्स एन. ये बेसिक क्लासेस में हम अब बस पावर 3 तक जानते हैं, या पावर 4 तक, बट यहाँ पे हम पूरे एन कैन बी एनी नेचुरल नंबर. ओके, so x minus a xn minus 1 plus a xn minus 2 plus a power n minus dot a power n minus 1, which means here plus then here, sorry, here minus then here also minus. So which just x minus a, 1 power outside, inside factor is what? X power here, power whatever the power here, and minus subtract 1 plus a power x power n minus 2 plus next term is what? A square x power n minus 3 plus dot last term is a power n minus 1, which means ये स्टार्ट करेंगे x के पावर n minus 1 से और लास्ट होगा a पावर n minus 1 से. और ईच टर्म में here note power of x decreases. This one is very important formula and be careful, here n belongs to natural number. Power of x decreases by 1 in each subsequent term from n minus 1 to 0, which means power of x will be decreased from n minus 1 to here x power what? 0. X power nothing means x power 0. Next is the power of a increased by 1 in each subsequent term. Power of a increased by 1 in each subsequent term. Power of a here 0, power of a here 1, power of a here 2, power of a 3 dot power of a n minus 1.
Okay, for example, n equal to 3, x cube minus a cube, x minus a, x square plus a square, x square, x minus a, x, and n is what? 3. So x square plus ax, x power 3 minus 2, 1, ax plus a power 3 minus 1, 2. Got it? अब नेक्स्ट आते हैं एक्स एन प्लस ए एन, एक्स एन प्लस ए एन, इफ प्लस होगा तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला सिर्फ n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर विच मीन्स x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल मीन्स 1 3 5, ये होगा तभी n इक्वल टू 1 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर ओनली, तभी। अगर इवन नेचुरल नंबर होगा तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सो एक्स एन प्लस ए एन इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स एन माइनस 1 माइनस ए एक्स एन माइनस 2, दोनों फार्मूला सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा आउटसाइड, इफ हियर प्लस देन हियर प्लस। एंड वन मोर डिफरेंस, हियर एवरी टर्म इज पॉजिटिव एंड हियर पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लास्ट one is and so on, right? But be careful here, n belongs to odd natural number. Got it? Next, we know very famous formula, limit x tend to a, xn minus an. Note, limit x tend to a, xn minus an upon x minus a, this is equal to nan minus 1. इसको प्रूव करना चाहें तो हम प्रूव कर सकते हैं वेरी इजीली। जस्ट xn माइनस an का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। xn माइनस an का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये है, इसको ओपन कर दीजिए आप। xn माइनस an इक्वल टू दिस वन, एंड x माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस a। सो x माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x माइनस a कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये रिमेनिंग रहेगा, ठीक है, ये बचेगा सिर्फ। सो जस्ट अप्लाई लिमिट x टेंड टू a, लिमिट x टेंड टू a मीन्स व्हाट, a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 प्लस a पावर n माइनस 1। सो ये कंप्लीट फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, a पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a पावर n माइनस 2, तो ये भी क्या हो गया, a पावर n माइनस 1। सो सिमिलरली a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। सो n टाइम्स a पावर n minus 1 means what, we need to add a power n minus 1 how many times, n times, which means this is equal to n a power n minus 1. ओके, सो यहाँ से ये फार्मूला आता है n a पावर n minus 1। अगर आपको प्रूफ नहीं समझ में आया आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ दे देंगे, कंप्लीट सिंपल प्रूफ। सो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। लिमिट एक्स टेंड टू 2, लिमिट एक्स टेंड टू 2 1 upon x minus 2, दिस इज द गिवन क्वेश्चन, we need to discuss solution. सो x टेंड टू 2, अब x टेंड टू 2 मीन्स 1 upon x minus 2। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहेंगे, इफ़ यू वांट टू सॉल्व डायरेक्टली, whenever x टेंड टू 2, x minus 2 टेंड्स टू 0, and 1 upon 0 almost you know this is going to infinity. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फिर भी फाइंड करेंगे आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस मीन्स व्हाट, दिस वन इज गोइंग व्हाट, माइनस इन्फिनिटी, एंड 2 प्लस दिस वन इज गोइंग प्लस इन्फिनिटी, विच मीन्स दिस वन इज प्रॉब्लम। तो आप ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं, ये दो फंक्शन का अलग अलग फंक्शन गिवन है, राइट, एंड हमको लिमिट अप्लाई करना है टोटल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंबाइन। ओके, अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ लिमिट प्रॉब्लम है। सो जस्ट कंबाइन मीन्स व्हाट, 1 upon x minus 2, this one is given, and here we can take what, simply this one is cubic equation, but x is common in each term, right? So take x common, remaining is what, x square minus 3x plus 2, then x square minus 3x plus 2, which means simply what we can do here, just combine, just add or subtract. So 1 upon x minus 2 into 2x minus 3, this one given, this one we got. How? This one quadratic equation, this quadratic equation x square minus 3x plus 2, आपको इजीली पता है कि कैसे इसमें कोफिशिएंट इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर क्या है। सो सिंपली जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, वेरी सिंपल। तो सिंपली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गेट फैक्टर इज व्हाट, x माइनस 1 x माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, जस्ट x minus 2 already here, right? So just after combine this one completely, what will get, x into x minus 1. Why? Here remaining x minus x into x minus 1, x minus 2 cancel, minus 2 into 2x minus 3 upon x into x minus 1 x minus 2.
Next, just open numerator completely. Okay, simplify. So x square minus x minus 4x plus 6, denominator same. After this we are getting x square minus x square minus 5x plus 6. Again factorize this polynomial, factorize this quadratic equation. After factorization we will get x minus 2 x minus 3, and then we got x minus 2 x minus 2 cancel out. X minus 2 x minus 2 cancel out, remaining is x minus 3 x into x minus 1. Just substitute x into 2, which means x going towards almost 2, so just substitute 2. Why? X tends to 2, again I am trying to discuss. X tends to means x not equal to 2, but for approximate value we can substitute directly if this function is defined. If not defined we can't substitute. So x टेंड टू 2 पे देखिए डिफाइंड है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल हम आपको ये डाउट हो सकता है कि यहाँ भी तो सब्सिट्यूट कर सकते थे, बट 1/2 माइनस 2 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो वी कॉन्ट सब्सिट्यूट हियर. ओके, बट यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल होने के बाद x माइनस 2 कैंसिल, दिस वन कैंसिल, देन सब्सिट्यूट x टेंड टू 2 विच इज व्हाट 2 माइनस 3/2 इंटू 2 माइनस 1. So 2 minus 3 is what? -1. 2 minus 1 which is what? -1/2. So answer of this question is what? -1/2. Good. Next method is, first of all we discussed about first method in limit. We discussed LHL RHL. Basic definition is LHL equal to RHL, then only we can say limit exists. Then we learn about direct substitution, when we can apply direct substitution, only when polynomial or rational function. Next, third method is what we learn about factorization. Fourth method is what? Rationalization method. Rationalization or double rationalization. What is meaning of rationalization or double rationalization? Which means rationalize आप जानते हैं 9 10 में करते हैं, रेशनल नंबर में rationalize कर दें, और डबल रेशनलाइजेशन मीन्स 2 बार रेशनलाइज कर दें. ओके, अगर एक बार रेशनलाइज करने से काम नहीं चल रहा है तो 2 बार रेशनलाइज कर देंगे. गॉट इट. सो आइए देखते हैं क्वेश्चन के द्वारा कैसे, बाय यूजिंग क्वेश्चन. सो लिमिट x टेंड टू 1 4 minus under root 15 x plus 1 2 minus under root 3 x plus 1. This is the given question and we need to find this function. This is the given function. We need to find the limit when x tends to 1. सो अगर आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे, सो x टेंड टू 1 सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आएगा देखिए यहाँ पे. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा 4 minus under root 15 plus 15x 15 into 1 15 plus 1 16. 4 minus 4 upon 2 minus 2 which is equal to 0 by this form is 0 upon 0, which means given function is of the form 0 by 0. Got it? 0 by 0. Okay, now if this one is 0 upon 0 form, which means answer indeterminate form. So answer क्या होगा? 0 by 0? No, which means something other method we need. Other method means here whenever आपको, अब confusion ये है कि ये मेथड कब लगाएंगे, रेशनलाइजेशन या डबल रेशनलाइजेशन. सेम एज इन बेसिक क्लासेस, रेशनलाइजेशन कब लगाते हैं? जब अंडर रूट साइन हो, अंडर रूट साइन हो. सो जब अंडर रूट साइन होगा तो रेशनलाइजेशन या डबल रेशनलाइजेशन लगा देंगे. ओके, अंडर रूट या पावर 1/3 वॉट एवर. सो अब रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन में जस्ट वॉट एवर हियर जस्ट मल्टीप्लाई बाई, if minus multiplied by plus. Okay, so 4 minus under root 15x plus, just same right here again. Okay, next multiply here 2 minus root under root 3x plus 1. So multiply with 2 plus under root 3x plus 1 divided by 2 plus under root 3x plus 1. Why? This is rationalization rule. If we will not multiply and divide by same number or same function, then function will be changed, which is problem. So function को सेम रखने के लिए सेम नंबर या सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस. सो यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1 है, सो जस्ट मल्टीप्लाई कर दे 2 प्लस, जस्ट माइनस को प्लस, सेम थिंग मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे 4 माइनस है तो 4 प्लस से सेम थिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1. अब ये देख सकते हैं कि ये क्या है, a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी. सो a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला आपको पता है कि a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स व्हाट? a प्लस बी फार्मूला मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो जस्ट अप्लाई कर दीजिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a माइनस बी a प्लस बी, इसको वेट करिए, वेट ना. सो 4 इंटू 4 16 प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 15x प्लस 1 अंडर रूट कैंसिल आर स्क्वायर विच इज 16 माइनस 15x प्लस 1. अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज वाट 2 इंटू 2 4 माइनस 3x प्लस 1. अब रिमेनिंग क्या हुआ, रिमेनिंग बच गया आपके पास, ये बच गया ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, ये बच गया. सो नाउ अब 16x माइनस 15x प्लस माइनस माइनस 1. सो 16 माइनस 1 15 माइनस 15x 4 माइनस 1 विच इज 3 माइनस 3x इंटू ये अगेन सेम टू सेम, राइट. नाउ
अब आप x टेन टू 1 पुट करके देख सकते हैं। x टेन टू 1 पे क्या होगा, 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 0, ओके, 3 माइनस 3 0, अगेन 0 by 0 फॉर्म. So what we need to do after this, we can do 15 लिमिट x टेंस टू 1. अब 15 यहाँ पे कॉमन लीजिए, रिमेनिंग क्या होगा 1 माइनस एक्स, 3 यहाँ पे कॉमन लीजिए, रिमेनिंग 1 माइनस एक्स. बी क्लियर हियर. आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आंसर नहीं आएगा कभी भी. ओके, इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग हियर देन 15 माइनस 15 0, 3 माइनस 3 0, विच इज 0 by 0 अगेन फॉर्म, विच इज प्रॉब्लम, राइट. सो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना. ओके, क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं करना है, विच मीन्स 15 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1. अब 1 माइनस एक्स कैंसिल, 3 इंटू 5 3 5 15, विच मीन्स 5 इंटू, अब अप्लाई कर दे लिमिट x टेन टू 1. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, इस फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है x टेन टू 1 पे. सो 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 2 अपॉन 4 प्लस 15 1 16 16 4. So 2 plus 2 4, 4 plus 4 8. So 5 into 4 upon 8, 5 1 upon 2, which is equal to 5 by 2. Got it? Thank you. Next concept is what? After fact, one is fact. We learn about factorization and then rationalization. Next one is for infinity, when limit going towards infinity. Limit when x tends to infinity, which means whenever any function limit x tends to infinity and here in whatever the function given, आप कैसे इसको फाइंड करेंगे. इसका सिंपल रूल ये है, डिवाइड द बाई ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, विच मीन्स whatever the power of x in numerator, whatever the power of x in numerator, whatever the power of in denominator, divide the greatest power of x in numerator and denominator, which means for example आप देखते हैं कि यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या है 2, यहाँ पे x पावर क्या है हाईएस्ट 2. सो यहाँ पे जस्ट एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, आप एक्स स्क्वायर क्या लीजिए कॉमन. और सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड स्टेप इसका जो है x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप विदाउट यूजिंग दिस कंडीशन ऑल्सो आप कर सकते हैं. बट फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, सेकेंड वन फॉर बेसिक स्टार्टिंग बिगिनर्स, दिस वन ओके, अदरवाइज यू कैन सॉल्व डायरेक्टली ऑल्सो. ओके, सी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, एक्स टेक एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर. सो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, रिमेनिंग इज व्हाट 3 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग इज व्हाट, रिमेनिंग दिस वन. Now extend to infinity. You know 1 upon infinity almost going to 0. Okay, almost going to 0. So just apply limit. After applying limit, 1 upon x is 1 upon infinity going to 0. 1 upon infinity square, which 1 upon infinity almost going to 0. 2 upon x, 2 upon infinity. 5 upon x, 5 upon infinity. This completely 0, this completely 0. Which means limit is what 1 by 3 and constant पे कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा. So 1 by 3. इसको सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग मेथड कंप्लीट एग्जैक्ट मेथड, पुट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई. इफ विल पुट एक्स, यहाँ से आपको क्लियर हो गया. अब देखते हैं कंप्लीट मेथड इसको कैसे कर रहे हैं. पुट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई मीन्स वेन एवर विल पुट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई, वाई टेंस टू 0, वाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई व्हेन एक्स गोइंग टू इन्फिनिटी. सो वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई, यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, डेट्स वाई वाई टेंस टू 0. अब इसको अगर हम उस फॉर्म में करते हैं तो वाई टेंस टू 0, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2y माइनस 5y स्क्वायर. अब अगेन y टेंस टू 0 मीन्स दिस वन 0, दिस वन 0, दिस वन 0, दिस वन 0, रिमेनिंग इज व्हाट 1 by 3. ओके, गुड, थैंक यू. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर जेई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिस वन इज द गिवन क्वेश्चन, राइट, वी नीड टू फाइंड विच वन इज करेक्ट ऑप्शन. सो सिंपली जस्ट स्टार्ट क्वेश्चन. अगर हम यहाँ पे एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी क्यूब प्लस 1 इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1, विच इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, विच इज व्हाट इनडिटरमिनेट फॉर्म. ओके, विच मीन्स वी कांट फाइंड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. सो एनी अदर मेथड वी नीड. एनी अदर मेथड मीन्स व्हाट, वेन एवर यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ different place function na, two different place function and asking limit at any point,
and if this one going to someone going to infinite form, first of all try to combine, okay. Just first try to combine x tends to infinity, x cube plus 1 minus ax plus b, just add x square plus 1 divided by x square plus 1. This is equal to limit x tends to infinity, x cube plus 1 minus multiply. So just divide by power 2. So limit x tends to infinity. Here if you will take x square common, remaining is what? X 1 minus a minus b minus a upon x minus b plus 1 upon x square divided by x square common. So remaining is what? 1 plus 1 upon x square cancel, which is equal to what? Which is equal to 2, Now if this limit is equal to 2, what we need to do? Just here see, x tends to infinity, this one is going 0, which means this one is going infinity, x tends to infinity, this one is going to infinity, which is problem. We need limit what? 2, which means 1 minus a को क्या होना पड़ेगा? This one equal to 0, okay. अगर इसकी फाइनाइट लिमिट होनी है तो 1 माइनस ए को 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज नो ऑप्शन. एंड हियर लिमिट 2 क्या है? वैल्यू इज व्हाट? 2 इज फाइनाइट और नॉट? यस, विच मीन्स देयर इज ओनली वन ऑप्शन, 1 माइनस ए शुड बी 0, अदरवाइज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, दिस टर्म्स कंप्लीट गोइंग टू इन्फिनिटी, दिस वन गोइंग टू इन्फिनिटी, विच मीन्स कंप्लीट न्यूमरेटर इज गोइंग टू इन्फिनिटी, लिमिट इज इन्फिनिटी नॉट 2, which means 1 minus a should be what? 0. So whenever 1 minus a equal to 0, 1 minus a equal to 0, which means a equal to 1, and whenever a is equal to 1, b equal to a equal to 1, then a equal to 1, then this one 0 and this one 0, which means this one x tend to infinity, this one also 0, this one also 0. Something upon infinity always 0, no? Something upon something, suppose you are sitting here u and divide by infinity, always 0, okay. So this one 0, this one 0, and this one also, as a equal to 1, this one 0, remaining is what? Minus b, and minus b equal to what? And this one already 0, so minus a equal to 1 we got, minus b equal to 2, which means b equal to minus 2. So a equal to 1, b equal to minus 2, which option? A equal to 1, b equal to minus 2, which is option C.